Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद निहारिका। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं निहारिका भुवानिया। Well, let's give you a complete roundup first. So, the 55th World Economic Forum annual meeting at Davos to conclude today. Indian delegation inks MOUs and attracts numerous investments. Benchmark domestic indices end week's last trading session with losses. Sensex drops 330 points. Nifty closes below 23,100. And global crude prices register weekly decline. Brent crude trades at $78.62 per barrel. दावोस में हो रही विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक आज समाप्त हो जाएगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 330 अंक गिरा, निफ्टी 23,100 से नीचे आ गया और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई साप्ताहिक गिरावट। ब्रेंट क्रूड $78.62 प्रति बैरल पर कर रहा था कारोबार। And with that, let's take you towards Davos first. So, the 55th World Economic Forum annual meeting at Davos to conclude today, wherein 6 Indian states shared a joint pavilion this year. The Indian delegation, spearheaded by the Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav, made strides in inking MOUs and attracting investments. At the World Economic Forum 2025 in Davos, Uttar Pradesh has secured significant investments and strategic partnerships with global and reputed national companies. Multiple key MOUs were signed to drive investments in technology, renewable energy, and other prominent sectors. Highlights include SIFI Technologies data center in Noida and AI hub in Lucknow, Lordsmark Industries solar plant, and promising discussions with Hindustan Zinc, Intel, Razorpay, and Bloom Energy. Among the states, Kerala's transformed industrial landscape received admiration and applause. Kerala State Industries Minister P. Rajiv said that during the 4-day event, discussions were held with the heads of 51 companies and representatives from various countries. These leaders were invited to the Invest Kerala Global Investor Meet scheduled for February, where Kerala's investment opportunities will be showcased. The Kerala Pavilion drew attention to sectors like IT, ITES, space tech, medical devices, maritime infrastructure, tourism, and MSMEs and startups. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की दावोस में विश्व आर्थिक मंच में 4 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य ब्रांड एपी की इमेज बनाना था। राज्य में निवेश आकर्षित करने के प्रयास सकारात्मक रहे और मेर्स्क और गूगल क्लाउड जैसी कई प्रमुख वैश्विक कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में निवेश के अवसर तलाशने में रुचि दिखाई। तमिलनाडु अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, विनिर्माण क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीव विज्ञान में नए निवेश के लिए खुला रहेगा और सुनिश्चित करेगा कि युवा प्रतिभाशील हों और कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार रहें। विश्व आर्थिक मंच में उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री TRB राजा ने कहा कि तमिलनाडु कई ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है और औद्योगिक विकास को गति देने के सभी विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि विश्व आर्थिक मंच के दौरान राज्य में 61 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें
54 निवेश से और 7 रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और इनकी कुल मात्रा 15,70,000 करोड़ रुपए है। तेलंगाना राज्य को दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ। 16 प्रमुख कंपनियों के साथ समझौतों के चलते 47,000 नौकरियां उपलब्ध होने की उम्मीद है और इस निवेश से नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीक, विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्या कहेंगी आप सुषमा जी? ये जो हमने देखा है एक चौतरफा सभी सेक्टर्स में, जो सनराइज सेक्टर्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं एंड एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इन सब में जो ये निवेश आ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान, कितना इम्पोर्टेंट है ये फोरम हमारे एफटीआई को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, ये बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपने सुनाई सोनू, क्योंकि अगर आप देखें, जो आपने तो बिल्कुल ठीक कहा कि जो क्षेत्र बहुत वाइड रेंजिंग है, एआई से लेके आईटी और मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लेकिन ये भी बहुत देखने वाली चीज़ है कि ये जो स्टेट्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट हुई है वो ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ तक, यूपी से लेके केरला तक, ये इनकी जो इंटरेस्ट आई है डेवोस में। और हालांकि ये दोनों जो प्रांत हैं, यूपी और केरला, ये उद्योग के लिए अभी नामी नहीं है। अभी इनके बारे में अगर आप उद्योग के बारे में बात करें तो वो दूसरे स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र ज़रूर हैं, लेकिन यूपी और केरला का नाम कम आता है। लेकिन लगता ये है कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, यूपी के सरकार ने, केरला की सरकार ने, दोनों ने, कि भाई अब हमारे प्रांत में भी, हमारे स्टेट में भी ये निवेश इन जगहों में आएगा, और वो भी हाई टेक्नोलॉजी। अगर आपने यूपी की बात करें तो सिफी टेक्नोलॉजीज डेटा सेंटर है, एआई हब है, तो ये तो जैसे आपने कहा सनराइज सेक्टर्स हैं, और यहीं हमको निवेश चाहिए, यही हमको एक्सपैंड करना चाहिए। And I think India is also emerging as a very attractive destination for AI, particularly given the huge amount of human resource that we have, right? So, any thoughts on AI specifically that you may have? Yes, I think, of course, the latest news that has come of a $500 billion investment in AI infrastructure in the US is something that we should look at closely, because we can, I think that in India, we can certainly replicate that kind of work, and we can certainly replicate that kind of interest in investment, because as you rightly said, the human resources, the brains for this kind of software and AI, a large number of them are not only based in India, or they come from India, and therefore this is an area I think that we can look, and I think the government is looking at that we should also be setting up much larger infrastructure for AI. इनफैक्ट दावोस से ही जुड़ी हुई है हमारी अगली खबर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि भारत न केवल जल संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय मंडप में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र जल संसाधनों को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा सतत जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मानक भी तय किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कार्रवाई को मजबूत करने पर बल देते हुए श्री पाटिल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या और अत्यधिक प्रयोग के कारण जल संकट बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये वैश्विक चुनौती है। श्री पाटिल ने कहा कि पिछले वर्षों में भारत में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। जो जल है वो हमारा सभी का एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। एंड कहा जाता है कि आगे चलकर जो वॉर्स होंगी वो वाटर पर बेस्ड होंगी। सो कैसे देखती हैं आप ये जो बल दिया जा रहा है सामूहिक, जो कहें कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, कितना इंपॉर्टेंट है? सुनो, जो आपने कहा वो मैं सोच ही रही थी कि ये बात कितने दिनों से हम सुन रहे हैं कि आगे जाके जो भी युद्ध होंगे ये सिर्फ ये तेल के ऊपर नहीं होंगे, ये और कोई मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर नहीं होंगे, ये पानी के ऊपर होंगे। और ये जो पानी की समस्या है, हम अपने देश में ही देख लें कि भाई पानी की समस्या कितनी जगह में है, ड्राउट कितने जगह में है, पाइपलाइंस हमें डालनी है, और
अगर हम सबसे डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, अमेरिका में, वहाँ पर जो फॉरेस्ट फायर्स चल रहे हैं कैलिफोर्निया में, उनकी एक वजह है कि वहाँ पर पानी की समस्या थी। पानी उनके हाइड्रेंट्स में कम था और वो फायर फाइटिंग स्टाफ को पानी नहीं मिल रहा था। तो पानी की के ऊपर जो हमें रिसर्च करना चाहिए और पानी के ऊपर हमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जल शक्ति मिनिस्टर ने जाके डेवॉस में ये बात कही कि डेवॉस में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और ये अभी जो आपने सनराइज सेक्टर्स की बात की, तो ये लेकिन ये बहुत ही क्रूशल क्षेत्र है। So I have another point here. In fact, you can call it a question actually. So with the inflow of so many startups in the country, so many startups are coming up in different areas, particularly AI, technology. Do you see scope for startups to come up in this space as well, in the space of water conservation? And if yes, can we give them a push in any way? I think there already are startups in this area which are doing work, I think, in the area of water conservation and in developing technologies to provide, drinkable water in a cheap and sustainable way. I mean, I have read reports about them. Now, whether you are very right that we should give them support, because this is the area that is, I mean, it seems a very, let's say, a very less publicized area. But water is really going to be very, very important. That is so important in this country where everybody doesn't have drinkable water on tap. And I think the new schemes that have come, I'm forgetting their names, and the new schemes to provide drinking water to everyone, I think those are laudable, and I hope that they come into effect. But these are, life, water is life ultimately, so we have to really focus on that. In fact, उन्होंने जो आप कह रही हैं उनका उन्होंने जिक्र भी किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल उपलब्ध कराने का, हाँ, वो उस नाम था, बिल्कुल। और ये बहुत, नहीं तो हम वो इमेजेस हैं कि घड़ा ले लेके इतने किलोमीटर चल के आ रही हैं महिलाएं। सो ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत प्रगति, ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और ये खासकर रिमोट एरियाज में, हिली एरियाज में जहाँ पानी नहीं होता, आपको याद होगा, आप भी हिल स्टेशन पे गए होंगे और वहाँ आपको बताया जाता है कि भी पानी नहीं मिलता यहाँ पर और बहुत कम मिलता है। तो यही क्षेत्रों में यहाँ पर हमें पाइपलाइंस डालनी है और यही मेरे ख्याल क्षेत्र में ये स्कीम्स जारी हैं, ये नल पे जल जो हैं स्कीम्स, और इनकी होपफुली ये एक्सपैंड हो जाएंगी। और अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज 2 दिन से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया और सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में वे गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयरों पर आधारित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.43% की मंदी से 330 अंक कम होकर 76,190 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 0.5% की गिरावट से 113 अंकों का नुकसान दर्ज करते हुए 23,092 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां पर बिकवाली का दबाव तुलनात्मक रूप से और भी तीव्र था। मिड कैप सूचकांक 1.6% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.2% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। And let's now take you towards the detailed stocks in English. Benchmark domestic equity indices today ended week's last trading session with losses, snapping its 2-day gaining streak. The 30-share index at Bombay Stock Exchange Sensex shed 330 points or 0.43% to close at 76,190. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 113 points, almost 0.5% to settle at 23,092. The broader market indices at BSE witnessed intense selling pressure. The mid-cap index dropped 1.6% and the small-cap index plunged over 2.2%. In the Sensex index, 20 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Mahindra & Mahindra shed over 2.9%, Zomato lost over 2.7%, and Tata Motors dropped nearly 2.5%. Meanwhile, among the top gainers, Hindustan Unilever surged almost 2%, Tech Mahindra gained over 0.7%, and Nestle added 0.7% as well.
In sectoral indices at the BSE, 18 out of 21 sectors ended in negative territory. In the top laggards, realty dropped 2.5%, oil and gas slipped 2.3%, and industrials dropped over 2.2%. Conversely, the three gainers were focused IT, which advanced 0.44%, and FMCG as well as tech both gained over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,902 companies declined and 1,038 advanced while 119 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 18 companies hit their 52-week high while 168 hit their 52-week low. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 86 रुपए 20 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.56 पर था। सुषमा जी, ये जो पूरा सप्ताह है काफी रोलर कोस्टर रहा, खासकर ट्यूसडे को हमने देखा कि जब ट्रंप जी का इनॉग्रल वो आया एड्रेस, उसके बाद काफी एक रिएक्शन दिया बाजारों ने नेगेटिव, उसके बाद बाजार समझा। आज फिर हमने गिरावट देखी। कैसे देखती हैं आप बाजार की अभी मनोस्थिति को? देखिए, बाजार आप तो रोज देखते हैं मार्केट मंत्र में कि ये सितंबर से लेके आज तक ये मार्केट का जो रुख है वो बिल्कुल बेरिश रहा है। और जो पीक आया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 25,000 उस वक्त, उससे हम 12% नीचे हैं। और बीएससी का भी 12% है। और ये जो डिक्लाइन है ये कई वजहों से है। एक तो खैर हमें मालूम है कि ये एफआईआईज बाहर जा रही हैं। एफआईआईज का आउटफ्लो बेसिकली क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो डॉलर स्ट्रेंथन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही हैं तो उनको वैल्यू वहाँ लगता है ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि जो पीक उस वक्त आया था, ये उस वक्त सबको लग रहा था कि जो इंडियन स्टॉक्स हैं वो थोड़े ओवर वैल्यूड हैं। और इस हिसाब से जो एफआईआईज वो समझते हैं कि ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन चल रहा है इंडियन मार्केट में। तो एक तो ये है कि ये करेक्शन इंडियन स्टॉक्स में, और दूसरा जो डोमेस्टिक फैक्टर्स खैर हैं। हाँ, एक और इंटरनेशनल फैक्टर ये ट्रंप का आना, ये जो आजकल की पिछले एक महीने से है कि भाई ये जो डर सा है कि अब यूएस में नया प्रेसिडेंट आ रहा है तो उसने बहुत सी चीज़ें कही थी कि टैरिफ्स लगेंगे इंडिया के ऊपर, कि वो बाकी सारी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कई जगहों पर। तो ये एक कंसर्न ट्रंप का भी था। और डोमेस्टिकली अगर आप देखें जो रिजल्ट्स आए थे पिछले 2 महीने पहले कि सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। सेकेंड क्वार्टर की जो इकोनॉमिक डेटा आई थी, ग्रोथ थोड़ी नीचे आ गई थी। और उसके बाद भी जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो थोड़ा धीमे चल रहा है। सारी जीएसटी इनफ्लोज, बैंक क्रेडिट और ये जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हम इस वजह से ये सितंबर से लेके ये स्थिति आज भी है। तो वॉलेटिलिटी जिसकी आपने बात की कि जो ट्रंप की, जैसे आपने कहा उस दिन की जो रिएक्शन था, ये मेरे ख्याल कुछ दिनों चलेगा। In fact, he's also made a statement where he's pushing people to set up manufacturing plants in the US, and he very openly says that if you do that, we will accept you with open arms, but if you don't, you're likely to face tariffs. So do you think that is adding to the sentiment in any way, or how openly will the markets respond to that the world over? I think Indian markets are volatile, but I think they've kind of factored in the Trump effect. Of course, unless he announces some tariffs specifically for India. Right now, there is just speculation. Right now, he has only talked about neighboring countries, Canada, Mexico. He's even talked about the EU. And of course, top on the list is China, where he definitely wants to impose tariffs. But India's name has not come in. I think we must remember one thing, that although Trump and the US administration in general has been wanting India to bring down its tariffs because they want to access the Indian market more easily. But the fact is that we contribute only about 3.9%
to the total deficit of the United States, and we come 9th in that list. In contrast, China contributes 30% to the deficit. So there is we are not that large contributors. However, as I said, they do want to access our market, and we look forward to the budget. Maybe we will have some decline in tariffs, not just as a response to that, but probably to have little more opening up of the economy. सुषमा जी, आपको लगता है, जैसे आपने बोला कि बजट आने वाला है, सो अब ऑन कमिंग ट्रिगर्स है बजट एंड मॉनेटरी पॉलिसी आफ्टर दैट, आपको लगता है कि शायद इनमें कुछ ऐसा बढ़ावा दिया जाएगा कि इकोनॉमी को भी बूस्ट मिले, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट को, पूरे इकोनॉमिक सेंटिमेंट को बूस्ट मिले? ये मिलना तो चाहिए। अब मेरे ख्याल में अब उनका एक तो रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा, टैरिफ्स के ऊपर है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में से हमारी जो इम्पोर्ट टैरिफ्स है वो थोड़ी सी धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, और अगर आप इंडिया की टैरिफ्स बाकी विश्व भर में देखें तो वो काफ़ी हाई हैं उस हिसाब से। तो जो ट्रम्प कह रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है, और जैसे मैंने कहा पहले की यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस भी कह रही थी, इतना ओपनली नहीं कह रही थी। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी इसके ऊपर सोच करनी चाहिए, और धीरे से हमारी टैरिफ्स थोड़ी सी नीचे आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त इस हालात में है कि वो कंपटीशन सह सकती है, और इट विल ब्रिंग अ competitive edge to our industry. Right. And with that, let's also take a look at India's foreign exchange reserves, which declined by $1.8 billion to $623.98 billion in the week ending January 17th. The latest data released by the Reserve Bank of India showed today. In the previous week, the country's forex reserves had dropped by $8.7 billion in the week ending January 10th and had settled at $625.87 billion. The decline this week was primarily attributed to a significant dip in foreign currency assets, or FCA, a major component of the reserves as per the weekly statistical supplement released by RBI. The FCA fell by $2.87 billion to over $533.13 billion during the week. Conversely, gold reserves were up by $1.06 billion, totaling to $68.94 billion. The reserves have been declining for the last few weeks, and the drop has been attributed to revaluation along with the foreign exchange market interventions by RBI to help reduce volatilities in the rupee. और अब टीडीएस से जुड़ी एक स्टोरी है, आप जी बिल्कुल। So the Supreme Court today dismissed a public interest litigation that called for the abolition of the tax deducted at source system under the Income Tax Act. The bench of Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, and Justice Sanjay Kumar ruled the plea as poorly drafted and advised the petitioner to approach the High Court instead. The plea labelled the TDS mechanism as arbitrary and irrational, claiming it infringed on several fundamental rights, including the right to equality. The system, a standard practice in many nations, requires the payer to deduct tax at the time of payment and deposit it with the income tax authorities, with the amount being adjusted against the pay's annual tax liabilities. So, Sushma ji, do you have something to say about this? What are your thoughts on this PIL? Well, I think, I don't think that these kind of things should be sent to the Supreme Court, first of all. This is part of, I think the government is now coming out with some simplification. I mean, this should be seen as part of simplification of income tax laws, and all these issues should be viewed in that light, because our laws on income tax are fairly complex, in fact excessively complex, and they need to be simplified and made easier for the common man to deal with corporates, for everyone, and they need to be made long term. We shouldn't have a lot of changes. So I think these things shouldn't go to the courts, they should be dealt with by the executive. लेते अगली खबर। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश का प्रमुख उद्यमी बनाने के लिए कृत संकल्प है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि उपराज्यपाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवा प्रमुख उद्यमी के रूप में उभरकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में तेजी से उद्योग उभर रहे हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए इसे क्रांतिकारी बताया और कहा कि नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के लिए शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच तालमेल जरूरी है। जो आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रही थी स्टेट्स में, उसका एक और प्रमाण।
Bilkul, and Foreign Secretary Vikram Misri will be on a 2-day visit to China from Sunday for a meeting of the Foreign Secretary Vice Minister mechanism between India and China. Briefing media in New Delhi, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said the Foreign Secretary will be meeting his counterpart, the Vice Minister in China, where all issues of bilateral interest will be discussed. On the tariff matters, the MEA spokesperson said India-US relationship is very strong, multifaceted, and the economic ties are something which is very special. He said there is established mechanisms between the US and India to discuss any matter or trade matters. India's approach has always been to address issues in a constructive manner, which is in keeping with the interests of both countries. He said India remains in close communication with the US administration. सुषमा जी, यूएस से हमारे रिलेशन के बारे में तो हम अभी काफी चर्चा कर चुके हैं. चाइना से भी हमारे ट्रेड रिलेशंस काफी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा. सो वो भी सुदृढ़ बने रहे, बहुत जरूरी है ये. देखिए, जैसे आपने कहा, यूएस और चाइना के जो हमारे ट्रेड रिलेशंस, हमारी ट्रेड उतनी ही है, पैरेलल समझ लीजिए. $118 बिलियन यूएस के साथ है और $118 बिलियन चाइना के साथ है. थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो कभी हम कहते हैं चाइना इज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, कभी हम कहते हैं यूएस इज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, पर उतना ही है. फर्क ये है कि यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है और चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है. तो हम चाहते हैं कि चाइना के साथ, चाइना को हम ज्यादा चीजें बेचें, और इसके बारे में खैर काफी बातचीत भी हुई है और काफी सोच भी की है कि किस तरह हम चाइना की मार्केट को ज्यादा और ये अच्छी तरह एक्सेस करें. और ये एक पहला मेरे ख्याल स्टेप है, नॉट ओनली स्ट्रेटेजिक इश्यूज बट इकोनॉमिक इश्यूज में. आइए अब अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों का रुख करते हैं. प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. हांगकांग का हैंगसेंग 1.8% से अधिक, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% से अधिक और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक लगभग 0.7% की वृद्धि में रहे. इस बीच जापान का निकेई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों में बहुत ही हल्की गिरावट रही. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर रुख मिला जुला था. फ्रांस का कैक 0.9% से अधिक की बढ़त पर और जर्मनी का डैक्स 0.2% की वृद्धि पर थे, लेकिन लंदन के फुट्सी में 0.3% से अधिक की गिरावट चल रही थी. And as for the US markets, US stocks edged higher yesterday as investors assessed mixed bag of corporate earnings and US President Donald Trump's call for lower interest rates and cheaper oil prices. The Dow Jones Industrial Average surged over 0.9%. S&P 500 advanced over 0.5%, and Nasdaq Composite added 0.22%. I think overall, the discussion has always been, today has been about US and Trump coming in and Davos and all of that. और अब कमोडिटीज का रुख करें निहारिका. बिल्कुल. So oil prices today rose but remained on track for a weekly decline after the US President Donald Trump announced plans to boost US production and demanded OPEC to lower prices. Brent crude was trading over 0.4% up at $78.62 per barrel, and WTI crude also added over 0.3% to trade at around $74.89 per barrel when reports last came in. और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.6% बढ़कर 80,460 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 1.21% बढ़कर 92,380 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी में आपूर्ति वाला सोना 0.57% की बढ़त में था और चांदी का वायदा मूल्य 1.08% बढ़ा हुआ था. आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी, जो सोने में हम इतनी बढ़त देख रहे हैं, 80,000 को क्रॉस कर गया है, क्या लगता है? ये जो सोने के जो डिमांड है वो इसलिए है क्योंकि जो वॉलेटिलिटी पूरे विश्व भर में है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ट्रंप का आना, ये सारी जो अनसर्टेन चीजें हैं, ऐसे वक्त पे क्या होता है कि लोग सोने के पास जाते हैं. इस कंसिडर्ड अ सेफ हेवन एसेट. और आजकल क्योंकि जैसे मैंने कहा वॉलेटिलिटी है और स्पेकुलेशंस हैं, तो फिर लोग सोना को चाह रहे हैं और सोना का भाव बढ़ रहा है.
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, आप आई और आपने विभिन्न विषयों पर हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। Well, it was a pleasure to be in conversation with you today, Sushma ji. And before we close, a reminder of the headlines. The 55th World Economic Forum annual meeting at Davos to conclude today. Indian delegation inks MOUs and attracts numerous investments. Benchmark domestic indices end week's last trading session with losses. Sensex drops 330 points. Nifty closes below 23,100. And global crude prices register weekly decline. Brent crude trades at $78.62 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Well, it's goodbye for now. Market Mantra.